اوکے ایکسرسائز 2.2 اور اس میں کویشچن نمبر 13 جو ہے کویشچن نمبر 13 میں ہے کہ سالو فور ایکس کی ویلیو کے لیے سالو کریں. اس میں جو پہلا ہے پارٹ وہ ایزی ہے کیونکہ اس کے فرسٹ کالم میں 2 زیروز ہیں تو آپ کو صرف ایک ہی کو فیکٹر فائنڈ کرنا ہوگا. لیٹس ٹرائی دس ون ایکس اسکوائر 1 اور ایکس اور یہاں پہ ہے 2 3 اینڈ 4 اور یہ ڈٹرمننٹ ہمیں گیون ہے کہ یہ ایکول ٹو نیگیٹو 6 ہے اور یہی گیون انفارمیشن یوز کرتے ہوئے ہم ایکس کی ویلیو فائنڈ کریں گے. تو لیفٹ سائڈ کا جو ڈٹرمننٹ ہے اس کو ایویلویٹ کرنا ہے. اب اگر ہم چاہیں کہ ہم کم کوفیکٹرز ہمیں فائنڈ کرنے پڑیں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اس ڈٹرمننٹ کا لیفٹ ہینڈ سائڈ کا ٹرانسپوز لے لیں. ٹرانسپوز لینے سے آپ کو پتہ ہے کہ ڈٹرمننٹ چینج نہیں ہوتا. سو لیٹس ٹیک ٹرانسپوز. یہ ہو جائے گا -1 0 اور 1 پھر ہوگا ایکس اسکوائر 1 اور ایکس اور پھر ہوگا 2 3 اور 4. اب اگر ہم فرسٹ رو کو 1 سے ملٹیپلائی کریں اور تھرڈ رو میں 8 کریں تو یا 1 سے ملٹیپلائی جسٹ وہ جو ہمارے پاس رول ہے اس کے مطابق اس کو کسی چیز سے ملٹیپلائی کر کے تھرڈ رو میں 8 کرنا چاہیے. تو یہ ہم لکھ لیں ایکس اسکوائر اور 2 یہاں پہ 0 ہے آلریڈی 1 اور 3 اور یہ اگر یہاں پہ ایڈ ہوگا تو اس سے آئے گا 0. ایکس میں ایک اسکوائر ایڈ ہوگا تو یہ ہو جائے گا ایکس پلس ایکس اسکوائر اور 2 اس میں ایڈ ہوگا تو اس سے آئے گا 6. اب ہمیں صرف ایک ہی کو فیکٹر کی ضرورت ہوگی جو کہ ہمارے پاس یہ نمبر جو ہے وہ -1 ہے فرسٹ کالم کے لحاظ سے. اس کو ہم ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں اور اب یہاں پہ جو کو فیکٹر ہے وہ ہوگا 1 1. نیکسٹ آپ کے پاس 0 ہے اور اس میں ہوگا A21 اور پھر ہے 0 اور A31 فرسٹ کالم میں یہی ہے. تو -1 اور یہ کو فیکٹر ہمیں کہتا ہے 1 1 کی فرسٹ رو اور فرسٹ کالم کو اگنور کریں. تو آپ کے پاس ہے 1 3 ایکس پلس ایکس اسکوائر اور 6 اور یہ یاد رکھیں کہ اب ہمارے پاس یہ سالو ہو گیا ہے تو دس از ایکول ٹو -6 یہ گیون ہے. ٹھیک ہے. اگر اس کو ہم نیچے لے کے آتے تو ہر سٹیپ میں سامنے لکھتے کہ ایکول ٹو -6 ایکول ٹو -6 لیکن یہ -6 آپ کا یہی ہے. تو اب اس میں آپ کے پاس ہوگا یہ ڈٹرمننٹ فائنڈ کریں. یہ -1 اور پوزیشن پازیٹیو تھا تو اس لیے اور یہ اب 3 اور ایکس اسکوائر کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا تو ڈائریکٹ کر دیتے ہیں 3x اور 3 ایکس اسکوائر اینڈ دس از ایکول ٹو -6. اب یہ نیگیٹو یہاں پہ ملٹیپلائی ہوگا تو یہ 3x اسکوائر کو کر دے گا پازیٹیو 3x اسکوائر اس کو کر دے گا 3x اور اس کو کر دے گا -6 ایکول ٹو -6. تو یہ -6 اگر اس سائڈ پہ آئے گا تو پازیٹیو 6 ہو جائے گا اور یہ آپ کے پاس بچے گا 3x اسکوائر پلس 3x ایکول ٹو 0. دیز ٹو ول کینسل آؤٹ. اب اس سے اگر آپ 3x کامن لے لیں تو اس سے آئے گا یہاں پہ x ہوگا اور یہاں پہ 1. دونوں سائڈز کو 3 پہ ڈیوائڈ کریں تو x انٹو x پلس 1 ایکول ٹو 0. تو x کی ایک ویلیو آپ کے پاس 0 ہے اور x کی دوسری ویلیو -1 ہے. مطلب کہ x کی ان دونوں ویلیوز کے لیے آپ کے پاس یہ جو گیون ڈٹرمننٹ ہے اگر یہاں پہ آپ 0 پٹ کریں گے x کی جگہ پہ یہاں اور یہاں تو اس سے -6 آئے گا یا اس کی جگہ پہ -1 پٹ کریں گے تو پھر بھی اس سے آئے گا -6. اسی طرح اس میں جو تھرڈ پارٹ ہے اس میں ہے کہ x پلس 2 اور 3 4 2x پلس 3 4 اور پھر 2 3
اور x प्लस 4 इक्वल टू 0 ये हमने साबित करना है। तो इसमें भी हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड, और इसमें एक इसी स्टेप में ये काम करते हैं कि पहले कॉलम में दूसरा और तीसरा कॉलम ऐड कर देते हैं, या ट्रांसपोज और डिटर्मिनेंट सेम चीज़ है तो अगर आप ट्रांसपोज ले लेंगे तो रोज़ ऐड कर सकते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा x प्लस 2 में अगर आप ये 7 ऐड करेंगे तो इससे आएगा x प्लस 9। ये अगर आप तीन आपस में ऐड करेंगे तो 2 प्लस x प्लस 3 प्लस 4, लेकिन एट द एंड इससे आएगा x प्लस 9। सिमिलरली इससे भी आएगा x प्लस 9। बाकी ये x प्लस 3, 3, 4, 4 और x प्लस 4, और ये इक्वल टू 0 है, ठीक है। दिस इज़ इक्वल टू, इससे x प्लस 9 पहले कॉलम से कॉमन ले लें। ये एक प्रॉपर्टी है हमारे पास जो कि हमें ऑलरेडी पता है कि इस तरह हम कर सकते हैं। 4, 4 और x प्लस 4 एंड दिस इज़ इक्वल टू 0, और हमें क्या करना है, मालूम करना है x की वैल्यू। अच्छा, अब अगर इसको हम इस डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करना पड़ेगा, तो या तो इसको हम डायरेक्ट इवैल्यूएट कर सकते हैं, या इस तरह करें कि एक कोफैक्टर अगर आपने फाइंड करना है, बाकी कैलकुलेशन से बचना चाहिए आपको, तो आप क्या करें कि R2 माइनस R1 करें। इस 1 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 0 आएगा। x प्लस 3 से 3 सब्ट्रैक्ट होगा, x आएगा। 4 से 4 सब्ट्रैक्ट होगा, 0 आएगा। अब R3 माइनस R1 करें तो 1 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 0, 3 से 3 सब्ट्रैक्ट होगा 0, और 4 से x प्लस 4 से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा x। अब इस डिटर्मिनेंट को अगर आप देखें तो ये ट्राइंगुलर है। ये जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है वो क्या है, ट्राइंगुलर। तो इसका हमें पता है इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू 0। इसका हमें पता है कि ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बराबर होता है मेन डायगोनल पे जो एंट्रीज हैं उसके। तो ये हैं 1 इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास x प्लस 9 और ये हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब इसको प्रोडक्ट रूल पे आप लिख सकते हैं कि x प्लस 9 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर मैं स्पेस बचाने के लिए, तो x प्लस 9 से आएगा x इज इक्वल टू 9, नेगेटिव 9, और x स्क्वायर से आएगा x की दो वैल्यूज़ आएंगी 0, 0, लेकिन हमें सिर्फ एक चाहिए क्योंकि दोनों सिमिलर वैल्यूज़ हैं। तो ज़रूरत दो ज़ीरोज़ की नहीं है बल्कि एक ही है। तो x की ये ऐसी वैल्यूज़ हैं जिसके लिए आपका डिटर्मिनेंट जो है वो होगा इक्वल टू 0। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास है कि शो दैट if inverse of a square matrix if exists, then it is unique। क्वेश्चन में हमें मैट्रिक्स नहीं दिया गया। जनरली हमने ये साबित करना है कि अगर किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होगा। तो ये एक प्रूफ टाइप क्वेश्चन है। उसमें हम एज्यूम कर देते हैं कि लेट ए इज़ अ स्क्वायर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। हमने ये एज्यूम किया कि ये इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब हमने ये साबित करना है कि ये इन्वर्स इसका यूनिक होगा, इसके 2 या 3 इन्वर्सेस नहीं होंगे। तो हम ऑन द कंट्री एज्यूम कर देते हैं, एज्यूम दैट A has 2 inverses B and C। हमने एज्यूम किया कि इसके 2 हैं। तो डिफिनीशन जो है इनवर्स का, बाय डिफिनीशन ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होगा फिर अगर A का B इनवर्स है तो हमारे पास AB
اور بی اے دونوں سے آئے گا آئیڈینٹی میٹرکس. سملرلی اگر سی اے کا انورس ہے تو اے سی اور سی اے دونوں پروڈکٹ سے آنا چاہیے آئیڈینٹی میٹرکس. ٹھیک ہے، تو اب ہم کنسیڈر کر دیتے ہیں بی کو ہم لکھ سکتے ہیں بی انٹو آئیڈینٹی میٹرکس بیکاز آئیڈینٹی میٹرکس ملٹیپلائڈ بائی اے میٹرکس از اکول ٹو دیٹ میٹرکس بیک. اب بی آپ کے پاس آئیڈینٹی میٹرکس آپ کے پاس برابر ہے اے سی کے اور سی اے کے. ٹھیک ہے، تو اس کی جگہ پہ ہم لکھ سکتے ہیں لیٹس رائٹ اے سی. آئی کی جگہ پہ لکھ دیتے ہیں اے سی. ٹھیک ہے، تو اب ہمارے پاس میٹریسز میں ایسوسیٹیو پراپرٹی جو ہے یہ ہولڈ ہوتی ہے. تو آپ بی اے کو پہلے ملٹیپلائی کر سکتے ہیں اور بعد میں سی کو ملٹیپلائی کر سکتے ہیں، لیکن بی اے کیا ہے؟ بی اے کا ملٹیپلیکیشن ہوگا آئیڈینٹی، اور اگر پھر بعد میں اس سے آئے گا آئیڈینٹی کو سی سے ملٹیپلائی کریں گے تو اس سے آئے گا سی. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ بی ہمارے پاس سی کے ایکول ہے. تو یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ یہ بی اور سی اصل میں ایک میٹرکس ہے، اور ہم نے زیوم کیا کہ اے کے دو مختلف انورسز بی اور سی ہو سکتے ہیں. تو دس از contradiction to our assumption of A having two inverses B and C. ہم نے کہا کہ اے کے دو انورسز ہو سکتے ہیں بی اینڈ سی، اور اب ہمارے پاس ثابت ہو گیا کہ بی اور سی اصل میں ایک ہے، یہ دو مختلف نہیں ہیں. تو یہ کنٹرڈکشن کیوں ارائز ہوا؟ اس لیے کہ ہم نے یہ چیز ایزیوم کی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 10 انورس آف اے میٹرکس if exists، کیونکہ ہر میٹرکس کا انورس نہیں ہوتا. اگر کسی میٹرکس کا ڈٹرمننٹ آپ کے پاس 0 ہو، سنگولر میٹرکس ہو، تو اس کا پھر انورس نہیں ہوتا. اچھا، کویسچن نمبر 15 میں ہمارے پاس انورس فائنڈ کرنا ہے. اے ہمارے پاس گیون ہے اور اس میں ہے 0 2 2 اور -1 3 2 1 0 5، اور ہم سے کہہ رہے ہیں کہ فائنڈ کریں اے انورس. دس از اور کویسچن. تو اس میٹرکس کا انورس فائنڈ کرنا ہے. تو سب سے پہلے تو اس کا ہمیں چاہیے ڈٹرمننٹ، کیونکہ انورس کا فارمولا کیا ہے؟ ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے وہ ہے ایڈجوائنٹ آف اے ڈیوائڈیڈ بائی ڈٹرمننٹ آف اے. تو اگر ڈٹرمننٹ 0 آتا ہے تو پھر ڈویژن بائی 0، یا ان ادر ورڈز میٹرکس سنگولر ہوگا اور سنگولر میٹرکس کا پھر انورس نہیں ہوتا، تو ایڈجوائنٹ کیلکولیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے ڈٹرمننٹ آف اے. اس کے لیے فرسٹ رو کے لحاظ سے اس کو ہم کرتے ہیں. تو یہ ہوگا A11 اور پھر 2 کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا A12 اور پھر 2 کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا A13. یہ تین کو فیکٹرز ہمیں چاہیے جو کہ ملٹیپلائی ہوں گے فرسٹ رو کے انٹریز کے ساتھ. تو پہلا پوزیشن ہمارے پاس پازیٹیو ہے، ہمیں چاہیے پہلا رو اور پہلا کالم اریز کریں 3 2 0 5. یہ پوزیشن نیگیٹو ہے تو یہاں پہ نیگیٹو لکھیں، اور اب پہلا رو اور دوسرا کالم یہ اور یہ اریز کریں تو -1 2 اور 1 5. فائنلی یہ پوزیشن پازیٹیو ہے، تو اس کو آپ یہ کالم اور یہ رو تو -1 3 اور 1 0، یہ آپ کے پاس ڈٹرمننٹ ہے. تو پہلا تو آبویسلی اس سے جو بھی آئے گا یہ 0 ہوگا. -2 اس سے کیا آئے گا؟ -5 -2، اور +2 اس سے آئے گا 0 -3 -3. تو یہ ہو جائے گا، اس سے آئے گا -7 اور 2 سے ملٹیپلائی ہوگا تو +14 اور -6، تو اس سے آئے گا 8 which is not equal to 0. Therefore we can find inverse of our matrix. اب ایڈجوائنٹ کے لیے آپ کو اسی میٹرکس کو دوبارہ لکھ دیتے ہیں.
ताकि हमें पता चले कि एडजॉइंट अब जब हम फाइंड करेंगे तो मैट्रिक्स हमारे सामने हो। तो ये है 0 2 2 और -1 3 2 और 1 0 5। तो एडजॉइंट के लिए हमें क्या चाहिए, हमें इन तमाम एंट्रीज़ के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स चाहिए। तो फिर वही कोफैक्टर्स हम एक मैट्रिक्स में लिख देते हैं। उस मैट्रिक्स को हम ये कर्वी ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसको कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13, कैपिटल A21, 22, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो सबसे पहले A11 आपके पास क्या होगा, ये आपके पास होगा ये पोजीशंस अगर हम पहले अपने सामने रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि ये हमारे पास क्या है, ये जो पोजीशंस हैं ये पहला पोजीशन आपके पास जो है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, फिर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो कोफैक्टर्स बनाते वक्त बस अब हमें आसानी होगी, बार बार हमें सिर्फ इस पोजीशन को देखें, इसका कोफैक्टर होगा A11। तो A11 आपके पास इक्वल होगा फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम 3 2 0 5। इसी तरह A12 आपके पास होगा, पोजीशन क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव लिखें और ये डिटरमिनेंट आपके पास होगा ये कॉलम और ये रो, तो -1 2 और 1 5। इसी तरह आपके पास A13 होगा, ये रो और ये कॉलम अगर आप इरेज करें तो -1 3 और 1 0। बाद में इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब दूसरा जो है A21, इसका पोजीशन क्या है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव लिख लें और दूसरा रो और पहला कॉलम तो 2 2 0 5 2 2 0 5। इसके बाद आपके पास है A22 पोजीशन जो है ये 21 है। ये आपके पास है पॉजिटिव पोजीशन, तो इसको बस पॉजिटिव ही रहने दें और ये आपके पास हो जाएगा सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम 0 2 1 5 रह जाएंगे, 0 2 1 5। और इसी रो का जो आखिरी है वो है दूसरा रो और तीसरा कॉलम। तो ये अगर आप पोजीशन आपके पास क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव लिख लें और अब ये रो और ये कॉलम जो है ये इरेज होगा, 0 2 1 0 0 2 और 1 0। इसी तरह आपके पास अब तीसरा जो रो है उसके लिए करते हैं, तो सिर्फ रो यहाँ पे हमें नहीं बल्कि पूरा मैट्रिक्स नज़र आना चाहिए। अच्छा, अब A31 आपके पास है, पोजीशन क्या है, पॉजिटिव, तो बस पॉजिटिव ही रहने दें और ये रो और ये कॉलम आउट होगा तो 2 2 और 3 2। इसी तरह A32 आपके पास है ये कॉलम और ये रो 0 2 -1 2 0 2 -1 2 और लास्ट है 3 3 जिसमें आपके पास है तीसरा रो और तीसरा कॉलम, तो 0 2 और -1 3 0 2 -1 और 3। अब ये हमारे पास जो कोफैक्टर्स हैं उसको अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट इसी मैट्रिक्स में लिखें सारे कोफैक्टर्स। पहला क्या होगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15 और -0, तो ये आपके पास होगा 15। यहाँ पे 5 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -5 और -2, तो टोटल होगा -7, लेकिन इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो +7। यहाँ पे ये 0 होगा और ये -3 नेगेटिव फार्मूले का है। यहाँ पे अब 10 -0, लेकिन साथ में यहाँ पे नेगेटिव है तो -10। यहाँ पे आपके पास है 0 और -2, ये हो जाएगा -2। ये नेगेटिव सिंबल यहाँ पे है, 0 -2, तो -2 के साथ एक ये होगा तो +2। और अब यहाँ पे 4 -6, तो इससे आएगा -2।
इससे आएगा 0, ये -2 है लेकिन एक फार्मूले का है तो टोटल हो जाएगा +2। और यहाँ पे ये पोजीशन अच्छा ये 0 है, ये भी, तो इससे आएगा +2। अब हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो बराबर है इस कर्वी मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज ले लें इस ए का, तो इसका अगर हम ट्रांसपोज लेंगे ये हमारे पास होगा 15, 7, -3 और -10 और -2, 2, -2, 2 और 2। अब हमारे पास इन्वर्स किस चीज़ के इक्वल है? ए का जो इन्वर्स है वो बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे डिवाइड करना या इसके 1/, के साथ मल्टीप्लाई करना, और हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आया था, ये ऊपर यहाँ पे मौजूद है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास ये थी 8, तो इसको 1/8 के साथ मल्टीप्लाई करें, 1/8 इनटू ये जो एडजॉइंट है जो कि कर्वी ए का ट्रांसपोज है, तो 15, -10, -2, 7, -2, 2, -3, 2 और 2, ये आपका इन्वर्स है। और इन्वर्स की प्रॉपर्टी ये है कि जो गिवन मैट्रिक्स हमारे पास ए था उसको अगर आप इस मैट्रिक्स के साथ अब मल्टीप्लाई करेंगे फ्रॉम द लेफ़्ट और फ्रॉम द राइट, तो इससे क्या आएगा, इससे 3/3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ये हमारे पास वही प्रॉपर्टी है जो नंबर्स में होती है कि अगर आपके पास 2 है तो 2 का इन्वर्स क्या करता है, ये बराबर है 2 × 1/2, इससे आएगा 1, और 1 क्या है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसी तरह ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है मैट्रिसेस का। फिर क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे पूछ रहे हैं कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन है जो कि है 3, -1 और 4, 2, तो क्या करें, ये साबित करें कि ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट जो है ये बराबर है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का। तो ये जो है ऑलरेडी हमें पता है कि ए और ए इन्वर्स जो हैं ये बराबर हैं आइडेंटिटी के, ठीक है। तो अगर आप दोनों साइड्स पे डिटर्मिनेंट ले लें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी, तो ये हमें पता है कि प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट आप लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है 1। दोनों साइड्स को डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे डिवाइड करें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स ऑलवेज बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। इस एग्जाम्पल से इसको आप खुद चेक करें कि ये इस तरह है या नहीं है। इसके बाद हमारे पास है कि वेरीफाई दैट, क्वेश्चन नंबर 17 में है कि वेरीफाई दैट मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास ए और बी, और हमने वेरीफाई करना है कि ये ए बी होल इनवर्स 2/2 मैट्रिसेस हैं, इसको साबित करना इंतहाई इजी है। तो लेट्स डू इट जनरली। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास है कि साबित करें कि ए इनवर्स होल इनवर्स जो है ये बराबर है ए के, और फिर इसमें दूसरा पार्ट है कि ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स और ए इनवर्स। इसको जनरली कर लेते हैं और यूजिंग मैट्रिक्स इसको करना आसान है। तो बाय डेफिनेशन 1 को करते हैं। बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स हमारे पास क्या है कि ए और ए इनवर्स जो हैं, या ए इनवर्स ए, इससे आएगा आइडेंटिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इनवर्स को अगर आप ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स को, तो इससे आता है आइडेंटिटी। तो इसका मतलब ये है कि ए इनवर्स का जो इनवर्स है वो हमारे पास ए है। हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ए का जो इनवर्स है वो ये है। तो इनवर्स की ये डिफिनीशन है कि अगर आप इसको मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी आएगा। लेकिन साथ में अगर आप ए इनवर्स को देखें, इसको भी अगर आप ए से मल्टीप्लाई करें तो इससे आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि
कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसको ए इनवर्स के साथ आप मल्टीप्लाई करें और उससे आइडेंटिटी आए तो वो ए इनवर्स का इनवर्स होगा। तो ए इनवर्स का इनवर्स क्या है, वो ए। देयरफॉर ए इनवर्स इनवर्स इज इक्वल टू ए। इसमें जो दूसरा पार्ट है उसमें ये साबित करना है कि ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स और ए इनवर्स। तो इसके लिए हम ए बी को मल्टीप्लाई कर देते हैं बी इनवर्स और ए इनवर्स के साथ और देखते हैं कि क्या होता है। तो पहले अब बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप बी और बी इनवर्स को पहले मल्टीप्लाई करें, और अब ये चूँकि इसका इनवर्स है बी का तो इससे आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो अब इससे आएगा ए आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी मल्टीप्लाइड बाई एनी मैट्रिक्स इज ए एंड नाउ ए इनवर्स। तो अगर आप ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा आइडेंटिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आप ए बी को बी इनवर्स ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे आता है आइडेंटिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो असल में ए बी का इनवर्स जो है वो बी इनवर्स ए इनवर्स है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास डिफिनीशन है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स को किसी दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें और उससे आइडेंटिटी आए तो इसका मतलब ये है कि ये मैट्रिक्स इसका इनवर्स है। तो ये हम अल्फाज में बोल रहे हैं, और मैथमेटिकली अगर हम कहेंगे कि ए बी का इनवर्स ये है तो हम कहेंगे कि ए बी का इनवर्स ये है। सो ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसमें है 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमने ये साबित करना है कि क्वेश्चन नंबर 19 में साबित करना है कि मैट्रिक्स गिवन है और उसमें है 2 3 नेगेटिव 1 1, और हमने ये साबित करना है कि ए इनवर्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इनवर्स। इसका मतलब ये है कि अगर आप मैट्रिक्स को पहले इन्वर्स करें फिर ट्रांसपोज करें या पहले ट्रांसपोज करें फिर इन्वर्स करें तो आंसर सेम आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड एम्प्लॉइज़ के पहले हमें ए इन्वर्स चाहिए फिर ट्रांसपोज। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, ये आपके पास होगा 2 और प्लस 3 इक्वल टू 5। ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास 2/2 के लिए हमारे पास मेथड क्या होता है कि हम इन दोनों के पोजीशंस चेंज कर देते हैं और इन दोनों के सिंबल्स चेंज कर देते हैं। तो हमारे पास अब ए इनवर्स जो है वो है 1/5 और ये आपके पास मैट्रिक्स है 1/3 1 और 2। अच्छा, अब ए इनवर्स हमारे पास है 1/5 नेगेटिव 3/5 1/5 और 2/5। अब ए इनवर्स का ट्रांसपोज क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड हमने साबित करना है तो ये होगा इसका ट्रांसपोज। पहले रो को लिखें पहला कॉलम और दूसरे रो को लिखें दूसरा कॉलम। ठीक है, तो ये ए इनवर्स ट्रांसपोज है। लेट्स कॉल दिस स्टेरिक। अब हम ए ट्रांसपोज इनवर्स मालूम करेंगे। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज पहले मालूम करें। ए ट्रांसपोज ए हमारे पास है 2 3 और नेगेटिव 1 1, तो ये हो जाएगा 2 3 और नेगेटिव 1 1। अब इस ट्रांसपोज का इन्वर्स फाइंड करेंगे। ए ट्रांसपोज का इन्वर्स अगर हमें चाहिए तो इसके लिए हमें चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज और एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज हमारे पास यहाँ पे होगा, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट होगा 2 और प्लस 3। अगेन ये यहाँ पे 2 और इससे आएगा प्लस 3 तो इससे आएगा 5। और एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज आपके पास होगा, इन रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज करें, सॉरी इन दोनों के पोजीशंस हम चेंज कर देते हैं 1 और 2 और इन दोनों के सिंबल्स, तो ये हो जाएगा 1 और नेगेटिव 3। तो अब ये एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज है, तो हमारे पास ए ट्रांसपोज इनवर्स जो है वो हो जाएगा यही मैट्रिक्स 1/5 इसमें मल्टीप्लाई होगा
اور 1 1 -3 اور 2 اگر یہ 1 اور